انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی امیگریشن نظام کا بھرپور استعمال کیا جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ انسانی اسمگلنگ کے خاتمے اور غیر قانونی طور پر بیرون ملک سفر کے خلاف اقدامات کا جائزہ۔ وزیر اعظم کو بیرون ملک کا غیر قانونی سفر کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں اور اقدامات پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے متعلقہ اداروں کی کاوشوں کی پذیرائی۔ وزیر اعظم کی کرپٹ عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ توشہ خانہ 2 مقدمے میں بھی بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا، 1,64,05,000 روپے فی کس جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ عدالت نے ایف آئی اے اینٹی کرپشن ایکٹ کی دفعہ 5 کے تحت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی۔ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 409 کے تحت دونوں ملزمان کو 7 سال کی مزید سزا۔ نیب نے توشہ خانہ 2 کیس میں 13 جولائی 2024 کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں گرفتاری ڈالی تھی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی 37 دن تک اڈیالہ جیل میں نیب کی تحویل میں رہے۔ تفتیش مکمل ہونے کے بعد نیب نے 20 اگست کو احتساب عدالت میں توشہ خانہ 2 کیس کا ریفرنس دائر کیا تھا۔ کیس کا فیصلہ اڈیالہ جیل میں اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے سنایا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی کو گلبرگ اور کلمہ چوک میں گاڑیاں جلانے اور توڑ پھوڑ کے 2 مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید اور اعجاز چودھری سمیت 29 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ 36 ملزمان کا چالان عدالت میں پیش کیا گیا۔ میاں اسلم اقبال سمیت مقدمے کے 12 ملزم اشتہاری قرار۔ اے ٹی سی جج ارشد جاوید نے کوٹ لکھپت جیل میں فیصلہ سنایا۔ توشہ خانہ 2 کیس کے فیصلے سے اصل بدعنوان بانی پی ٹی آئی ثابت ہوا۔ دوست ملک سے ملنے والے تحائف کو مارکیٹ میں کوڑیوں کے بھاؤ بیچا گیا۔ 60 کروڑ کے تحفے کی قیمت 13 لاکھ لگانا مذاق ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی کرائی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا فیصلے پر رد عمل۔ خان صاحب کتنے لیکچر دیتے رہے، لوگوں کو چور کہتے رہے، ڈاکو کہتے رہے، اور کرپشن کے خلاف انہوں نے اتنی جو ہے وہ بات کی۔ تحفے جو ہیں یہ اسٹیٹ کے تحفے ہوتے ہیں، اور تحفہ آپ کو ملا ہے توشہ خانہ میں، وہ جمع ہو کے آپ نے اس کو حاصل کیا ہے، وہ دبئی سے برآمد ہو رہا ہے۔ دوسروں کو چور ڈاکو کہنے والا خود سب سے بڑا چور نکلا۔ بانی پی ٹی آئی کو تحفے میں ملنے والی گھڑیاں دوسرے ملکوں میں بیچی گئیں۔ پی ٹی آئی حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی چنیوٹ میں میڈیا سے گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی نے تقریباً 32 کروڑ روپے کا یا 33 کروڑ روپے کا جو عوام کو ٹیکہ لگانے کی کوشش کی تھی، یہ بالکل بے نقاب ہو کے آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور اس فیصلے نے مہر ثابت کی ہے کہ پاکستان میں قانون اور آئین سب کے لیے برابر ہے۔ دوسروں پر الزام لگانے والا خود رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے قومی خزانے کو لوٹا۔ توشہ خانہ 2 کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ گواہان اور ثبوتوں کی بنیاد پر بانی پی ٹی آئی کو سزا سنائی گئی۔ توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی آئین اور قانون سے بالاتر نہیں۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک۔ کئی درجن وکیل بدلے ہیں انہوں نے، کئی دفعہ سٹے لیے ہیں، کئی دفعہ کوشش کی ہے، کئی دفعہ اس کو سیاسی بنانے کی کوشش کی ہے، اس کو سیاسی ڈرامہ بازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ سیاسی کہنے سے کیس میں آپ بے گناہ نہیں ہوتے۔ بانی پی ٹی آئی مسلسل جھوٹ بولتے رہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزا آئین اور قانون کے مطابق ہوئی۔ مہنگی گھڑی اور ہار توشہ خانہ میں جمع کرانے کی بجائے خلاف قانون فروخت کیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی کے قول و فعل میں تضاد ہے، اب اپنے بچوں کے ذریعے ہمدردی لینا چاہتے ہیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہونے والی کرپشن کا منہ بولتا ثبوت۔ پی ٹی آئی دور میں توشہ خانہ کے رولز تبدیل کر دیے گئے۔
बानी पीटीआई ने बार बार आइन और कानून को तोड़ा। पीटीआई का सियासी नारा ही करप्शन था। बुशरा बीबी और वजीर आला ने रिकॉर्ड करप्शन की। केस का फैसला खुशाइंद है। वजीर ममलकत बिलाल अजहर कियानी, पार्लिमानी सेक्रेटरी इतलात व नशरियात बैरिस्टर दानियाल चौधरी, वजीर इतलात पंजाब अस्मा बुखारी। मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर। हुकूमत कारोबारी अफराद और बरामद कुनंदगान को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां है। बरामदात के शोबे में वुसअत के साथ रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फरोग पर काम करना होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुल्की बरामदात पर जायजा इजलास में इजहार ख्याल। कोल्ड चेन और सनत व तिजारत से मुंसलिक दीगर शोबों के फरोग के लिए सूबों से रवाबित मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार से ताजिकिस्तान के सफीर की मुलाकात। दो तरफा तिजारत को $500 मिलियन तक बढ़ाने के आज़म का इजहार। इसहाक डार का आला सतह रवाबत और निजी शोबों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर जोर। ताजिक सफीर ने पाकिस्तान में पहले ताजिक कल्चरल वीक के इनेकाद में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। तर्जुमा दफ्तर खारिजा। वजारत खजाना के आदादो शुमार से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 2200 अरब रुपए के बकाया जात वाला बयानिया जमी बोस। वफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 8404 अरब रुपए अदा कर चुका है। 2010 से दहशतगर्दी के इजाफी बोझ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इजाफी 1% मिला। वफाक ने 17 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा को NFC के बद में 46 अरब 44 करोड़ रुपए जारी किए। NFC के तहत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 5867 अरब रुपए का 100% अदा हिस्सा हो चुका। रकूम सूबों को हर 15 दिन में बाकायदगी से मिलती हैं, कोई बकाया नहीं। एलामिया वजारत खजाना। मकबूजा कश्मीर में छापों तलाशी की कार्रवाइयों गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। भारतीय फौज ने जिला शुपिया में 2 नौजवान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार नौजवानों के खिलाफ काले कानून UAPA के तहत मुकदमा दर्ज। जम्मू के जिला किश्तवाड़ में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ मुजाहिरे। नीतीश कुमार को वजारत आला के मनसब से हटाने का मुतालिबा। आलमी बिरादरी भारतीय मुसालिम के शिकार कश्मीरियों की हालत जार की तरफ तवज्जो दे। कश्मीर फलस्तीन में सिसकती हुई इंसानियत फौरी तवज्जो की मुतकाजी है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। बांग्लादेश के शहीद तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी की नमाज जनाजा में अवाम का समंदर उमड़ आया। शहीद शरीफ उस्मान हादी की नमाज जनाजा बांग्लादेश की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा करार। लाखों बांग्लादेशियों का भारत से शदीद नफरत का इजहार। ढाका भारत मुखालिफ और शेख मुजीब मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। चीफ एडवाइजर बांग्लादेश डॉक्टर मोहम्मद यूनुस समेत बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। उस्मान हादी को ढाका यूनिवर्सिटी में बांग्लादेश के कौमी शायर काजी नजरुल इस्लाम के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी। गजा शहर के मशरकी हिस्से में बेघर अफराद की पनागाह। स्कूल पर सेहूनी फोर्सेज के हमले। बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। वस्ती गजा में अलमगाजी कैंप इसराइली फौज के निशाने पर। जनूबी गजा में रफा शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर भी इसराइली हमलों में मुतादिद फलस्तीनी जख्मी हो गए। अमरीकी फौज के शाम में दाइश के ठिकानों पर हमले। शाम के वस्ती इलाकों में फैले मुख्तलिफ मकामात पर दाइश के 70 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। शाम में दहशत गर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले का हुक्म दिया है, जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते 3 अमरीकी शहरियों को कत्ल किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप शामी सरजमीन पर दहशतगर्द तंजीम के लिए किसी भी किस्म की महफूज पनागाह का वजूद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजारत खारजा शाम। अबुरे रहमत की बलोचिस्तान में धुआंधार आमद। कोयटा, गवादर समेत शिमाल मगरबी बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज रात से बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोटोहार में तेज हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। लैंडस्लाइडिंग, सड़कों की बंदिश और फिसलन के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने का खदशा। मशरकी पंजाब और बलाई सिंध के अजला में धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान।
दुबई में अंडर 19 एशिया कप फाइनल में कल पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ 8 विकेटों से कामयाबी। अंडर 19 एशिया कप पीटीवी स्पोर्ट्स और पीटीवी नेशनल पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। Trav Ball does that to you, and he's done it again. Straight to him. Brilliant from Stokes. And gets another one. एडिलेड में एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 4 विकेटें और इंग्लैंड को 228 रन दरकार। 435 रन के हदफ के ताकुब में इंग्लिश बैटिंग लाइन मुश्किलात के शिकार। 207 रन पर 6 खिलाड़ी आउट। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की बढ़तरी हासिल। एशेज सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। There's the end. Oh, what a catch! Brilliant catch. We saw it. There you go. Oh, beautiful shot. That's nice. Oh. Go straight. Really good shot. बिग बैश क्रिकेट लीग का 7वां मैच सिडनी सिक्सर्स की सिडनी थंडर को 47 रन से शिकस्त। जोश फिलिप के 96 और बाबर आजम के 58 रन। 199 रन के हदफ के ताकुब में सिडनी थंडर की टीम 151 रन बनाकर आउट। जैक एडवर्ड्स की 5 विकेटें। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। Should be out. It is. और बल्तिस्तान में 21 दिसंबर को नए तिब्बती साल का आगाज। जश्न महफिल की तैयारियां मुकम्मल। जिला शिगर के वासी सदियों से सर्द फजा में रोशनियों का त्यौहार मनाते आ रहे हैं। जश्न में सकाफती खेल खेले जाते हैं। लोग मशल थाम कर घरों से निकलते हैं। जश्न महफिल शिगर की कदीम सकाफत, उम्मीद और रोशनी के पैगाम का हसीन इजहार है। रिपोर्ट खबरनामे का हिस्सा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। तालीम याफ्ता नौजवान मगर बेरोजगार, ये पाकिस्तान का वो दर्द है जो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दिल पर लिया और हजारों नौजवानों को हुनर से रोजगार का रास्ता दिखाया। इसी सिलसिले का एक और इक़दाम इंडस्ट्री लेड ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत नेवटैक और नेट सोल इंस्टीट्यूट ऑफ AI के बाहमी इश्तराक से AI एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंसेज और साइबर सिक्योरिटी की जदीद टेक्नोलॉजीज में ट्रेनिंग फराहम कर रहे हैं, जिससे नौजवानों को यकीनी नौकरियां मिलेंगी। नेट सोल इंस्टीट्यूट ऑफ AI में नौजवानों के लिए आलमी मयार की तरबियत और रोजगार के पुरकशिश मौके। कोर्सेज का दौरानिया 3 माह, उम्र की हद 18 से 40 साल। मजीद तफसीलात के लिए नेवटैक की वेबसाइट www.navtag.gov.pk विजिट करें। www.nsis.navtag.gov.pk पर ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी 2026। नेवटैग, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमिग्रेशन का निज़ाम बेहतर बनाने के हवाले से टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। इस्लामाबाद में इंसानी स्मगलिंग के खात्मे और गैर कानूनी तौर पर बैरून मुमालिक के सफ़र के खिलाफ इक़दामात पर जायजा इजलास की सदारत करते हुए वजीर आज़म ने करप्ट अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुतालिका इदारों की काविशों को सराहा। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरों की ऑफलोडिंग के हवाले से हालिया इत्तलात और इस हवाले से शिकायत पर वफाकी वजीर दाखिला ने खुद एयरपोर्ट्स पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया, जो इंतहाई लायक तहसीन है। वजीर आज़म ने हिदायत की कि गैर कानूनी तौर पर बैरून मुमालिक का सफर करने वालों और मशकूक सफरी दस्तावेजात रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई में इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि मोतबर सफरी दस्तावेजात रखने वाले मुसाफिर इससे मुतासर ना हों। वजीर आज़म ने यह भी हिदायत की कि प्रोक्योरमेंट ऑफ इमिग्रेंट्स की कारकर्दगी
मजीद बेहतर बनाई जाए। उन्होंने वफाकी तहकीकाती इदारे और दीगर मुतल्लिका इदारों में हम आहंगी मजीद बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया ताकि कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाने वालों को दौरान सफर किसी रुकावट का सामना न करना पड़े। इजलास को बैरून मुल्क गैर कानूनी सफर करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों और इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि FIA ने इस साल इंसानी स्मगलिंग और बैरून ममालिक के गैर कानूनी सफर के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस 451 अफराद को गिरफ्तार किया है। मुतालिका इदारों की कार्रवाई से यूरोप का गैर कानूनी सफर करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 47% कमी आई है। इसी तरह खलीजी ममालिक में गैर कानूनी दस्तावेजात पर सफर करने वालों की तादाद में भी कमी हुई है। ब्रीफिंग में बताया गया कि यूरोप के ममालिक में गैर कानूनी हिजरत, वर्क वीजा, विजिट और टूरिस्ट वीजा का गलत इस्तेमाल, ऑफलोडिंग और डीपोर्ट होने की अहम वजूहात हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि FIA में रिस्क असेसमेंट यूनिट का काम कर रहा है, जिससे मुसाफिरों की टारगेटेड स्क्रीनिंग की जाती है और डीपोर्ट होने और गैर कानूनी सफर करने वाले मुसाफिरों को डेटा सिस्टम में शामिल किया जाता है। FIA में करप्शन साबित होने पर 196 अफसरों और एहलकारों की नौकरी से बर्खास्त किया गया है। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद की अदालत ने बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल कैद और 1,64,05,000 रुपए फीकस जुर्माने की सजा सुना दी। फैसला मुल्जिमान और उनके वकला की मौजूदगी में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने अडियाला जेल में सुनाया। पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 409 के तहत मुल्जिमान को 10-10 साल, जबकि दफा 2, 5 और 47 के तहत 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने मुल्जिमान पर फीकस 1,64,05,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया, जिसकी अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद की सजा अलग से होगी। नैब ने 20 अगस्त 2024 को एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 रेफरेंस दायर किया था और 13 जुलाई 2024 को बानी PTI और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में गिरफ्तार किया, जहां वो 37 दिन तक तहवील में रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब की तरामीम बहाल होने पर तोशाखाना 2 रेफरेंस 9 सितंबर 2024 को FIA एंटी करप्शन अदालत मुंतकिल हुआ। 16 सितंबर 2024 को स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने अडियाला जेल में पहली समाअत की। अदालत ने 1 साल के दौरान 21 गवाहों के बयानात कलमबंद किए। 12 दिसंबर 2024 को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। जज शाहरुख अर्जमन ने गवाहों और फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया था। मई वाक़यात के मंतकी अंजाम की जानिब एक कदम। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने गुलबर्ग और कलमा चौक में गाड़ियां जलाने और तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात के फैसले में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत 29 दीगर मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अरशद जावेद ने मुकदमात का फैसला कोट लखपत जेल में सुनाया। फैसले में मियां असलम इकबाल समेत मुकदमे के 12 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया है। उन्हें एक मुसल्लह हुजूम की क़यादत करने का मुजरिम पाया गया, जिसने पत्थर, अंडे और पेट्रोल बम पुलिस एहलकारों पर फेंके जो सरकारी गाड़ी में सफर कर रहे थे। यह संगीन जुर्म 10 मई 2023 को लाहौर के गुलबर्ग मार्केट के नजदीक चैनवन चौक पर किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ यह फैसला 9 मई के घिनौने मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की जानिब एक और अहम कदम है। रियासत ने बिलाखिर 9 मई 2023 को पैदा किए गए इंतशार के मुआवनीन और मुहर्रिकीन को कानून के शिकंजे में लाने का अमल शुरू कर दिया है। ये फैसले ISPR के उस मुसलसल मौक़िफ़ के ऐन मुताबिक हैं कि 9 मई के इंतशार की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की क़यादत को जरूर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ये सजाएं असल मनसूबा साज बानी PTI की हतमी सजा की जानिब एक अहम पेशरफ्त है, जिनके इशारे पर रियासत की बालादस्ती का ललकारा गया था। तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो बानी PTI की पुरतशद्दुद और नफरत अंगेज सियासत की वजह से पहले ही राहें जुदा कर चुकी है। उन्होंने 9 मई के वाक़यात में इमरान खान के बराह रास्त मुलव्विस होने के बारे में वाज़ेह बयानात जारी किए हुए हैं। ये सजाएं वाज़ेह पैगाम देंगी कि रियासत अपनी बालादस्ती को चैलेंज करने वाले किसी भी मज़मूम मंसूबे को बर्दाश्त नहीं करेगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि बानी PTI और बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म हाउस को कारोबार बना रखा था। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान का नाम दुनिया में बदनाम किया और अमानत में खयानत की। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि तोशाखाना के तहाइफ बेचकर मुनाफा कमाया गया। उनका कहना था कि तहाइफ की कीमत कम लगाकर खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। 60 करोड़ रुपए के तहाइफ की कीमत 13 लाख लगाकर न सिर्फ कौम के साथ मजाक किया गया, बल्कि एक संगीन जुर्म का इर्तिकाब भी किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने अदालत में अपना केस भरपूर तरीके से लड़ा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तोशाखाना 2 केस का फैसला PTI दौरे हुकूमत में होने वाली करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अपने दौरे हुकूमत में बानी PTI और उसकी टीम ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर साबित हो चुका है। बानी PTI को तोहफे में मिलने वाली घड़ियां दूसरे मुल्कों से बरामद हुई। खान साहब कितने लेक्चर देते रहे, लोगों को चोर कहते रहे,
डाकू कहते रहे और करप्शन के खिलाफ उन्होंने इतनी जो है वो बात की, वो जो 190 मिलियन पाउंड वाला जो कि तकरीबन 60-70 अरब रुपया बनता है, उन्हें एक मुल्क से जो है वो मिलती है तोहफे में, और ये तोहफे जो हैं ये स्टेट के तोहफे होते हैं, और तोहफा आपको मिला है तोशा खाना में वो जमा होके आपने उसको हासिल किया है, वो दुबई से बरामद हो रहा है। चिन्योट में वज़ीर आज़म की मुशीराना सनाउल्लाह रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तज़ा के घर भी गए। उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की, मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिह ख़्वानी भी की। वज़ीर ममलकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि तोशाखाना 2 केस का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने बिरादर मुल्क से मिलने वाले तहाइफ बेचे और कौमी खजाने को लूटा। उन्होंने कहा कि तोशाखाना 2 केस का फैसला साबित करता है कि कोई आइन और कानून से बालातर नहीं। बानी पीटीआई ने तकरीबन 32 करोड़ रुपए का या 33 करोड़ रुपए का जो अवाम को टीका लगाने की कोशिश की थी, ये बिल्कुल बेनकाब होकर आपके सामने आ चुकी है। और इस फैसले ने मुहर साबित की है कि चाहे वो किसी मुल्क का सरबराह क्यों ना हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, या किसी भी मकतबा फ़िक्र से वो ताल्लुक़ रखता हो, या किसी भी पोजीशन पे वो फाइज रहा हो, पाकिस्तान में कानून और आइन सबके लिए बराबर है। दाखिला उमूर के वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा है कि बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी को सज़ा आइन और कानून के मुताबिक हुई। कीमती सरकारी तहाइफ का गलत इस्तेमाल मुल्क के लिए आलमी सतह पर बदनामी का बायस बना। रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद। दाखिला उमूर के वजीर ममलकत तलाल बदर चौधरी ने कहा कि तोशाखाना केस एक सादा, वाज़े और शवाहिद पर मबनी मामला था, जिसे बिला जवाब सियासी रंग देने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और सियासतदान होना बेगुनाही की दलील नहीं होता। 14 से 15 महीने लगे हैं, कई दर्जन वकील बदले हैं इन्होंने, कई दफा स्टे लिए हैं, कई दफा कोशिश की है, कई दफा इसको सियासी बनाने की कोशिश की है, इसको सियासी ड्रामाबाजी करने की कोशिश की है। सियासी कहने से केस में आप बेगुनाह नहीं होते। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने तोशाखाना के निजाम को मुकम्मल तौर पर शफाफ बना दिया है। तलाल चौधरी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रही हैं और सिर्फ लाइफ स्टॉक के बजट को पिछले अदवार की निस्बत बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। आपके महकमे का नाम तो लाइफ स्टॉक है, लेकिन कुछ देर पहले तक इसमें खुद लाइव नहीं था। ये सिर्फ 1 साल 1.5 साल में आपका बजट 250 गुना बढ़ा है सिर्फ लाइफ स्टॉक का। तकरीब से खिताब करते हुए मेंबर पंजाब असेंबली मियां ताहिर जमील ने कहा कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी बेमिसाल है। डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक पंजाब सैयद नदीम बदर शाह और डायरेक्टर फैसलाबाद हैदर अली खान ने बताया कि पैरा वेटरनरी स्टाफ को 119 मोटरसाइकिल दिए जा रहे हैं ताकि वो मवेशियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद मुहैया कर सकें। तकरीब में पैरा वेटरनरी स्टाफ को मोटरसाइकिलों की चाबियां दी गयी। महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब की तरफ से पैरा वेटरनरी स्टाफ को मोटरसाइकिलों की फराहमी बीमार मवेशियों को तेज तर तिब्बी इमदाद मुहैया करने में अहम किरदार अदा करेगी। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। वज़ीर ममलकत बराए खजाना बिलाल असर कियानी ने कहा है कि बानी पीटीआई ने बार बार आइन और कानून को तोड़ा। आला मनसब पर बैठकर करप्शन की गई और मिलने वाले तहाइफ को बेचा गया, जबकि कवायद के मुताबिक ये तहाइफ तोशाखाना में जमा कराना लाजिम थे। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने फैसले को खुशाइन करार देते हुए कहा कि बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी को सजा आइन और कानून के मुताबिक हुए। उन्होंने कहा कि पीटीआई मुल्क को दोनों हाथों से लूटती रही और इस जमात का सियासी नारा ही करप्शन था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी को सजा आइन के मुताबिक सुनाई गई। उन्होंने कहा कि पीटीआई के दायरे हुकूमत में तोशाखाना के रूल्स तब्दील किए गए, तहाइफ के जाली इंदराज होते रहे और सियासत के नाम पर चोर मचाए शोर का वावेला किया जाता रहा। उनका कहना था कि पीटीआई के दायरे हुकूमत में बुश्रा बीबी और वज़ीर आला ने रिकॉर्ड करप्शन की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। हुकूमत बरामदात में इजाफे के लिए कारोबारी अफराद और बरामद कुनिंदगान को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां है। लाहौर में मुल्की बरामदात पर जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बरामदात के शोबे में वसअत और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। उन्होंने तिजारत, सनत और पैदावार और कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वफ़ाक़ी वज़रा को हिदायत की कि वो मुख्तलिफ सनती और तिजारती शहरों में बरामद कुनिंदगान के पास खुद जाएँ। वज़ीर आज़म ने कहा
कि कोल्ड चेन और सनअत और तिजारत से मुंसलिक दीगर शोबों के फरोग के लिए सूबों से रवाबित मजीद बेहतर बनाए जाएं। इजलास में वज़ीर आज़म को माली साल 2025-26 की अब तक की बरामदात और दरामदात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की ज़ेर सदारत नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी एक्निक के इजलास में ट्रांसपोर्ट, मवासलात और माहौलियात समेत मुख्तलिफ शोबों के 11 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दी गई। इजलास में दासू हाइड्रो पावर मनसूबे की नजरसानी शुदा PC1 समेत सालाना 10,000 नौजवान इंजीनियर्स की तरबियत और उन्हें तरक्याती मनसूबों में शामिल करने से मुतालिक पॉलिसी पेपर की मंजूरी भी दी गई। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान तिजारत को $500 मिलियन तक बढ़ाने के आज़म का इजहार किया है। इस्लामाबाद में ताजिकिस्तान के सफ़ीर शरीफजादा यूसुफ से मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म ने 2026 में दो तरफा रवाबित और निजी शोबों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। ताजिक सफ़ीर ने पाकिस्तान में पहले ताजिक कल्चर वीक के इनेकाद में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, आदाद-ओ-शुमार ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 2200 अरब रुपए के बकाया जात वाला बयानिया ज़मीं बोस कर दिया। वफाकी हुकूमत गुज़िश्ता 15 साल में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कुल 8,404 अरब रुपए फराहम कर चुकी है। तफसील बता रहे हैं अनीस आवान। वजारत खजाना के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2010 से नवंबर 2025 तक NFC के तहत खैबर पख्तूनख्वा को 5,867 अरब रुपए अदा हो चुके हैं। NFC फंड्स हर 15 दिन बाकायदगी से सूबों को मुंतकिल किए जाते हैं और कोई बकाया जात नहीं। रवा माह वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को NFC की मद में 46.44 अरब रुपए फराहम किए। दहशत गर्दी के इजाफी बोझ के तहत 705 अरब रुपए, स्ट्रेट ट्रांसफर्स के जरिए 482.78 अरब रुपए, नए जमशुदा इजला के लिए 704 अरब रुपए, IDPs के लिए 117.166 अरब रुपए और वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में 115 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा को मुंतकिल किए जा चुके हैं। BISP के तहत 2016 से 2025 तक 481.433 अरब रुपए सूबे की आवाम तक पहुंचाए गए हैं। माहिरीन के मुताबिक PSDB के फंड्स किसी सूबे के लिए वाजिबुल अदा रकम नहीं बल्कि मंसूबों की पेशरफ्त और कारकर्दगी से मशरूत होते हैं। PSDB के फंड्स को NFC के बकायाजात के तौर पर पेश करना गलत है। वफाकी हुकूमत के मुताबिक NFC निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने के लिए अमली इकदामात किए जा रहे हैं, जिनमें 11वें NFC का कयाम, ज़ेली ग्रुप्स की तश्कील और सूबाई मशावरत शामिल है। वफाकी हुकूमत की तरजीह है कि खैबर पख्तूनख्वा को सलामती, बहाली, इंजमाम और तरक्की के तमाम चैलेंजेस में शफाफ और मुनसफाना माली मुआवनत फराम की जाए। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध में दिल के इलाज की मुफ्त सहूलत फराहम करने की जानिब अहम कदम खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने शहीद बेनज़ीराबाद में दिल के अमराज के अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। आसिफा भुट्टो ने अस्पताल का दौरा किया, उन्हें अस्पताल में फराहम की जाने वाली सहूलियात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। नया अस्पताल 55 बेड्स पर मुश्तमिल और जदीद कार्डियक एमरजेंसी सर्विस से आरास्ता है। अस्पताल में इब्तदाई एंजियोप्लास्टी और बच्चों के दिल की देखभाल की सहूलत भी मुफ्त फराहम की जाएगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने कि SICVD दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त कार्डियक हेल्थ नेटवर्क बन चुका है। उन्होंने इदारे के क़याम में ताउन करने वाले इदारों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पिजोहो उन्हें SICV शहीद बेनज़ीराबाद को सूबे के तिब्बी ढांचे में अहम इजाफा करार देते हुए कहा कि हुकूमत सिंध अवामी सेहत के इदारों को मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के मुश्तरका कमीशन का 15वां इजलास ब्रसल्स में हुआ, जिसमें मजमूई दो तरफा ताउन का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान जमहूरियत, गवर्नेंस, इंसानी हुकूक, तिजारत और सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी और यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान पर अमल दरामद पर गुफ्तगू हुई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इजलास में GSP+ के तहत ताउन पर भी बातचीत हुई। इजलास में गजा की सूरत हाल, मसला कश्मीर, सिंतास मुआहदे और अफगानिस्तान से मुतालिक सिक्योरिटी और इंसानी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। कुछ बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की, जहां काबिज भारतीय फोर्सेज और बदनामे ज़माना तहकीकाती इदारों की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों में छापों, तलाशी की कार्रवाइयों और बिला जवाज़ गिरफ्तारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय पुलिस ने जिला शिपैया में तलाशी के दौरान 2 नौजवान एहसन अहमद और राहील अहमद बट को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नौजवानों के खिलाफ काले कानून UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। भारतीय फोर्सेज ने श्रीनगर और वादी कश्मीर के दीगर अजला में अहम मकामात पर कायम इजाफी चौकियां भी कायम की हैं, जहां गाड़ियों, मुसाफिरों और राहगीरों की सख्त तलाशी ली जा रही है।
जम्मू खत्ते के जिला किश्तवाड़ और दीगर इलाकों में भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की तरफ से मुस्लिम खातून डॉक्टर का नकाब उतारने की मज़मूम हरकत के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए गए। मुजाहरों में खवातीन और बच्चों समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और उन्हें फौरी तौर पर वज़ारत आला के मनसब से हटाने का मुतालबा किया। इंसानी यकजहती के आलमी दिन पर KMS की तरफ से जारी की जाने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आलमी बरादरी भारतीय मज़ालिम का शिकार कश्मीरियों की हालत ज़ार की तरफ तवज्जो दे और उन्हें हक़ खुद इरादियत दिलाने के लिए किरदार अदा करे। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने आज़ादी के मुतालबे की पादाश में कश्मीरियों का जीना दूभर कर रखा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में सिसकती हुई इंसानियत आलमी बरादरी की फौरी तवज्जो की मतकाजी है। इंसानी यकजहती के आलमी दिन पर एक बयान में उन्होंने कहा कि यह दिन मनाना इस वक्त तक बेसूद है जब तक दुनिया मजलूम कश्मीरियों और फलस्तीनियों की शाना बशाना खड़ी नहीं हो जाती, जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से भारत और इसराइल के जुल्म और सितम का शिकार हैं। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं के ज़ेर असर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बेशतर अजला में बारिश, जबकि कोयक टॉप और दीगर शिमाली इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान भी मौजूद है। रिपोर्ट करेंगे कोयटा से वक़ार अहमद। बलूचिस्तान में बारिश का तवील इंतजार फिर आखिर खत्म हो गया। कोयटा, पशीन, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, कलात, सुराब, रक्षान डिवीजन में नोशके, दालबंदीन, नुकुंडी, यकमच, परापचा, जबकि मकरान रीजन में पंजगूर और कोस्टल बेल्ट पर हफ्ते की सुबह से कहीं तेज कहीं हल्की बारिश का सिलसिला तमाम दिन जारी रहा। बारिश की वजह से N40 कोयटा तफ्तान कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 2 खवातीन जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी भी हुए। तवील अरसे से बारिशें न होने की वजह से बलूचिस्तान में खुश्क साली का सामना करना पड़ रहा है। मौसम सरमा की बारिशों से जेर जमीन पानी की सतह में बेहतरी की भी उम्मीद है। मेट ऑफिस का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान कोयटा, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, चमन, कलात, मस्तूंग, ज़ियारत, हरनाई, मूसाखेल, योब, चागी, नोशकी, वाशुक, पंजगूर, केच और गवादर में गरज चमक के साथ बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। सूबे के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और अबर आलूद रहने की ही तवक्के है। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 123 दिन बाद बादल बरस पड़े। कोयटा, ज़ियारत, हरनाई, चमन, मूसाखेल, चागी, नोशकी, पशीन, वाशक, केच और गवादर में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक नारान, कागान, चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, मानसेरा, एबटाबाद, शांगला, गिलगित, अस्तोर, हुंजा, स्कर्दू, मरी, गलियात, वादी नीलम, बाग, पूंछ और हवेली में लैंडस्लाइडिंग और बर्फबारी के बायस सड़कों की बंदिश और फिसलन के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने का खतरा है। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। ताहम शिमाल मगरबी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पठवार में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मशरकी पंजाब और बालाई सिंध के अजला में धुंध और स्मोक छाए रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहा। पंजाब और बालाई सिंध के बाज़ अजला में धुंध और स्मोक छाई रही। ताहम जुनूब मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश कल्लात 13, जीवानी 9, गवादर 8, नौकुंडी 5, दालबंदीन 3, योब, कोयटा, पंजगूर 2 और तुरबत में 1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। और आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -4, बिगरोट, गोपिस -2, स्कर्दू -1, कलात और पारा चिनार में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे रही। इस्लामाबाद 6, लाहौर 9, कराची 16, पेशावर 9, कोयटा 8, मुल्तान 10, गिलगित में 1 डिग्री सेंटीग्रेड, स्कर्दू -1, मुजफ्फराबाद 6, जबकि श्रीनगर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और नाज़रीन, अब खबरों का सिलसिला कुछ आगे बढ़ाते हैं। आपको बताते हैं बांग्लादेश के शहीद तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी को ढाका यूनिवर्सिटी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा में बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की।
नमाज जनाजा बांग्लादेशी पार्लियामेंट के साउथ प्लाजा में अता की गई, जिसके लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पार्लियामेंट हाउस और इसके गिरदोनवाह में ड्रोन उड़ाने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद की गई थी। बांग्लादेश में उस्मान हादी के इंतकाल पर आज कौमी सोग है। बांग्लादेश का परचम सरनिगू रहा और सरकारी तकरीबात भी महदूद रखी गईं। बांग्लादेश के शहीद तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कातलाना हमले के नतीजे में शहादत के बाद हादी स्क्वायर शाहबाग में मुजाहिरीन का शदीद एहतजाज जारी रहा। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मोदी को गुजरात का कसाई करार देते हुए कहा कि उस्मान हादी के कत्ल में भारतीय राव मुलव्विस है। शहीद उस्मान हादी का मुबैना कातिल कलदम छात्रा लीग का रहनुमा फैसल करीम मसूद उर्फ दाऊद खान भारत फरार हो चुका है। बांग्लादेशी हुकाम ने भारत से मुलजिमान की हवालगी का मुतालबा किया है। उस्मान हादी शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने वाली तहरीक के रहनुमा थे। अमरीकी फौज के शाम में दाइश के ठिकानों पर हमले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी फौज ने शाम में दाइश के दहशतगर्दों को निशाना बनाया है। नॉर्थ कैरोलिना में खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले का हुक्म दिया है, जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते 3 अमरीकी शहरियों को कत्ल किया था। अमरीकी फौज के मुताबिक शाम के वस्ती इलाकों में मुख्तलिफ मुकामात पर दाइश के 70 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। शामी वज़ारत खारिजा के मुताबिक शामी सरजमीन पर दहशतगर्द तंजीम के लिए किसी भी किस्म की महफूज पनागाह का वजूद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब कुछ बात गजा की सूरत हाल की। इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस के मुताबिक गजा शहर के मशरक़ी हिस्से में बेघर अफराद को पनाह देने वाले एक स्कूल पर इसराइली हमले में बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। जनूबी गजा में रफ़ा शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर भी इसराइली हमले किए गए, जिसमें मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। इसराइली फोर्सेस ने वस्ती गजा में भी अल-मगाज़ी कैंप को निशाना बनाया। हमास ने कहा है कि इसराइली हमलों का यह तसलसल गजा अमन मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। और अब कुछ कौमी खबरों में आपको बताएंगे। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी को मसावी हुकूक हासिल है। नारोवाल में क्रिसमस रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी माशरा एक मुतवाज़िन माशरा है, जहाँ अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और उन्हें हर शोबे में खिदमत अंजाम देने का बुनियादी हक़ मुयस्सर है। MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि K4 मंसूबे को विफाक के हवाले किए जाने के बाद इसमें तेजी से पेशरफ्त हुई और 75% काम मुकम्मल हो चुका है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि SAFC को मईशत के इस्तेहकाम के लिए अहम हुकूमती इक़दाम करार दिया है। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद ने कराची में BISP के मुख्तलिफ दफातर और चुनेसर गोट में डायनामिक रजिस्ट्री सेंटर का दौरा किया। उन्होंने मुस्तहिक़ ख़वातीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि BISP की तमाम सर्विसेज बिल्कुल मुफ्त हैं। किसी भी इजाफी रकम के मुतालबे या कटौती की सूरत में फौरी तौर पर करीबी BISP दफ्तर में शिकायत दर्ज कराएं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि अवामी मसाइल उजागर करने में मीडिया का अहम किरदार है। हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखती है। लाहौर प्रेस क्लब में सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की किताब रुदाद सितम की तकरीब रुनमाई से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किताब हर उस शख्स की तर्जुमानी करती है जो जमहूरियत और आइन की बालादस्ती और बुनियादी इंसानी हुकूक पर यकीन रखता है। तकरीब में सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की और मुसन्निफ की सहाफ़ती खिदमात पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि मार्के हक़ में अजीम कामयाबी ने मसला कश्मीर को एक बार फिर आलमी सतह पर उजागर कर दिया है। तफसील जानेंगे नईमुल असद से। इस्लामाबाद में कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम और ऑल कश्मीर न्यूज़पेपर सोसाइटी के नवमुंतखब वहदारान की तकरीबी हलफबरदारी से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि मसले कश्मीर के हवाले से कश्मीरी सहाफ़ियों का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि मार्के हक़ में कामयाबी के बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर मसले कश्मीर पर बात हो रही है। मसला कश्मीर के हवाले से जो मायूसी थी 5 अगस्त के बाद लोग अब ये समझ रहे थे कि अब इस पर बात नहीं होगी, लेकिन शायद उन शहीदों के खून का सदका, इसमें किसी का कोई कमाल नहीं अल्लाह के फजल के अलावा, कि मार्का हक में कामयाबी के बाद आज फिर एक बार दुनिया ने इस मसले को ना सिर्फ तस्लीम किया बल्कि आज व्हाइट हाउस से भी इस मसले के हवाले से नाम लिया जा रहा है। आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने कहा है कि मीडिया की तरक्की और सहाफ़ियों की फलाह बहबूद हुकूमत आज़ाद कश्मीर की अवलीन तरजीहात में शामिल है।
वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज राठौर ने ऑल कश्मीर न्यूज पेपर सोसाइटी और कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम के नामुतक ओहदेदारान से हलफ लिया। सदर AKNS जाहिद तबस्सुम, सदर KJF इरफान सदरजोई, सेक्रेटरी जनरल मकसूद मुंतजिर और दूसरे सीनियर सहाफियों ने कहा कि वो सहाफती अक़दार, सच्चाई, तवाज़ुन और जिम्मेदार रिपोर्टिंग के जरिए मसले कश्मीर को उजागर करने और आज़ाद रियासत की तरक्की के लिए अहम किरदार जारी रखेंगे। नईमुल असद, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। लोक विरसा इस्लामाबाद में पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की सकाफतों का हसीन इम्तिजाज देखने में आया। रंग मौसीकी ने दारुल हुकूमत की शाम को सजा दिया। रिपोर्ट कर रही हैं सदफ अफजल। खूबसूरत और रंग बिरंगे रिवायती मलबूसात पहनकर ताजिकिस्तान की फनकाराओं ने अपनी परफॉर्मेंस से सकाफती मेले के हुस्न को दुबाला कर दिया। हाजरीन ताजिक रक्स और मौसीकी से बहुत लुत्फानंदोज हुए। पाकिस्तान के ढोल की थाप और रिवायती रक्स ने भी तकरीब को खूब रौनक बख्शी। मेले में ताजिकिस्तान के रिवायती मलबूसात, ज्वेलरी और दस्तकारी के स्टॉल्स लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। पाकिस्तान में कल्चर बहुत कलरफुल है, फूड बहुत मज़ेदार है। वो स्पेशली आई लाइक कराही बिरयानी, दिस आर माय फेवरेट फूड। जो लोग हैं ताजिकिस्तान के बहुत अच्छे हैं, उनका जो बिहेव था हमारे साथ बहुत पोलाइटनेस है। पाकिस्तानी कल्चर में मुझे इसका खाना पसंद है, जो स्पाइसी खाना है, स्पेशल बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। शलवार और कमीज है ना, वो भी मुझे पसंद है। ताजिक फनकारों ने परफॉर्मेंस के दौरान खूबसूरत अल्फाज में पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का भी इजहार किया। मौसीकी और सकाफत सरहदों की मोहताज नहीं होती, बल्कि दिलों को जोड़ने का जरिया बनती हैं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को NFC, पन बिजली और दीगर मदों में 8 खरब से ज़्यादा रुपए की अदायगी के बावजूद सूबे में तरक्की नजर नहीं आ रही। तफसील बता रहे हैं अकदर खान अपनी रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत की जानिब से खैबर पुख्तनख्वा को 8 खरब रुपए से जायद की अदायगी के बावजूद सूबे में बड़े तरक्याती मनसूबों का फुकदान नजर आ रहा है। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बुनियादी सहूलियात की कमी, तरक्याती जमूत और मजमूई बदहाली की सूरत हाल अवामी सतह पर तशवीश का बाइस बनी हुई है। नाकिदीन का कहना है कि सूबाई हुकूमत की जानिब से मुसलसल ये दावा किया जा रहा है कि विफाक के जिम्मे 2200 अरब रुपए बकाया है, ताहम दस्तियाब सरकारी माली दस्तावेजात इस दावे की तायीद नहीं करती। इन आदाद शुमार के मुताबिक विफाक की जानिब से रकूम की फराहमी बाकायदगी से जारी रही है। तज्जियाकारों के मुताबिक अदायगी के ताज़ा आदाद शुमार ने खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत की माली कारकर्दगी और वसाइल के मौसर इस्तेमाल पर एक संजीदा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि असल मसला विफाकी फंड्स की अदम दस्तियाबी के बजाय सूबाई सतह पर मनसूबा बंदी, शफाफियत और गवर्नेंस का नजर आता है। अवामी हलकों में यह सवाल भी जोर पकड़ रहा है कि अगर गुज़िश्ता 15 बरसों में सूबे को खरबों रुपए फराहम किए जा चुके हैं तो फिर तरक्याती समरात शहरियों तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं और इस सूरत हाल की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। इसके अलावा वजारत खजाना के मुताबिक 17 दिसंबर 2025 को वफाकी हुकूमत ने खैबर पुख्तनख्वा को NFC की मद में मजीद 46 अरब रुपए से जायद जारी किए, जो इस बात की निशानदही करता है कि सूबे को वफाकी वसाइल की तरसील का अमल बदस्तूर जारी है। हालिया आदाद शुमार ने सूबाई हुकूमत के माली दावों और जमीनी हकाइक के दरमियान फर्क को मजीद नुमाया कर दिया है, जिस पर सियासी और अवामी सतह पर बहस शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अकदर खान, PTV न्यूज़, पेशावर। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी यकजहती का दिन मनाया गया। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद इंसानों के बाहमी इत्तेहाद और यगानगी की अहमियत को उजागर करना है। कराची से सुहेल जमाली की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान एक नजरियाती इस्लामी रियासत है जहाँ इस्लामी तालीमात की पैरवी में हुकूमत और फलाही इदारों की जानिब से मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानी इमदाद का सिलसिला जारी रहता है। मुआशरे के मुस्तहिक तबकात हों या दुनिया भर में जंग से मुतासिर अफराद, पाकिस्तानी कौम ने इंसानी यकजहती के फरोग में अपना किरदार अदा किया है। इसराइली जारहियत के शिकार फ़लस्तीन, लबनान और शाम के अवाम के लिए वफाकी हुकूमत और NDMA के ताउन से फलाही इदारों की इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला मुस्तकिल बुनियादों पर जारी है, जहाँ अब तक लाखों टन इमदाद भिजवाई जा चुकी है। पाकिस्तान में
پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے ہر شعبے میں خدمت کے ادارے موجود ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ ترکی کا زلزلہ ہو یا چین میں سیلاب، سری لنکا کے سمندری طوفان سے بے گھر افراد کی داد رسی ہو یا ملکی سطح پر بارش اور سیلاب سے متاثر افراد کی امداد، اہل پاکستان نے آگے بڑھ کر انسانی خدمت کا فریضہ انجام دیا ہے۔ دنیا بھر میں تیزی سے پھیلتی سماجی ناہمواری، معاشرتی طبقات میں وسیع ہوتی خلیج، غربت میں اضافے اور کمزور ممالک پر جارحیت کے نتیجے میں انسانی المیوں کو روکنے کے لیے عالمی برادری کو انسانی یکجہتی کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ انسانیت سکھ کا سانس لے سکے۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ جناح انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام خوبصورت بزم شعراء میں معروف شعراء نے کلام پیش کیا اور طلباء سے داد وصول کی۔ محفل مشاعرے کی تفصیل بتا رہے ہیں اس رپورٹ میں۔ طلباء کے ادبی ذوق کی آبیاری کے لیے جناح انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام محفل مشاعرہ کا انعقاد ہوا۔ مشاعرے میں ملک کے معروف شعراء نے اپنا کلام سنایا اور طلباء سے خوب داد وصول کی۔ دعوت کلام مقبول عام شاعروں کو دی گئی تو محفل کی رونق ہی تو بالا ہو گئی۔ کیا عجب خواہشیں اٹھتی ہیں ہمارے دل میں، کر کے منا سا ہواؤں میں اچھالے تم کو، جب بھی ملتی ہیں سرسری آنکھیں، بات کہتی ہیں انتہی آنکھیں، میرے لفظوں کو مات دیتی ہیں، بات کرتی یہ بولتی آنکھیں۔ وہ بھی خوش تھا، اس نے دل دے کر دل مانگا ہے، میں بھی خوش ہوں، میں نے پتھر سے پتھر بدلا۔ انسٹیٹیوٹ کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ مشاعرے کی روایت کو زندہ رکھنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگر ہم بچوں کو اس طرف لے کے آئیں، انہیں ادبی پروگرام، ان کی تربیت، تعلیم کے ساتھ ساتھ، تو بچے سنتے بھی ہیں، بچے عمل بھی کرتے ہیں اور بچے اپنے ہیروز کو یاد بھی رکھتے ہیں۔ جناح انسٹیٹیوٹ کا یہ مشاعرہ تھا جو کہ بہت اچھا تھا، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ محفل میں معروف کلام پر طلباء نے پرفارمنس بھی پیش کی۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء میں یادگاری اسناد بھی تقسیم کی گئیں۔ ڈاکٹر عمر ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔ اور ناظرین، بلتستان میں نئے تبتی سال کے آغاز پر 21 دسمبر کو جشن مفنگ منایا جاتا ہے۔ ضلع شگر میں یہ جشن کیسے مناتے ہیں بتا رہے ہیں گلزار شگری اس رپورٹ میں۔ سرد فضا میں روشنیوں کا تہوار، یہ مناظر ہیں ضلع شگر میں جاری جشن مفنگ کے، جو یہاں کے باسی صدیوں سے مناتے آ رہے ہیں۔ ہر سال 21 دسمبر کو نئے تبتی سال کے آغاز پر ضلع شگر کے باسی جشن مفنگ مناتے ہیں۔ اس جشن میں ثقافتی کھیل بھی کھیلے جاتے ہیں اور لوگ مشعل تھام کر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ ہمیشہ ہماری کوشش رہی ہے ہم اپنے کلچر کے ساتھ منسلک رہے، دن بھر ہر سال ہم اس کو مزید سے مزید بہتر طریقے سے منانے کی ہم کوشش کریں گے۔ ہر سال یہاں پہ یہ روایتی تہوار کو یہاں کے لوگ بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں اور بلتی پیپل ہیں، اپنی روایات کو زندہ کرتے ہیں اور جشن منا کر نئے سال کی آمد جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ جشن مفنگ شگر کی قدیم ثقافت، امید اور روشنی کے پیغام کا حسین اظہار ہے۔ گلزار شگری، پی ٹی وی نیوز، شگر۔ ناظرین، کھیل میں خوش آمدید۔ انڈر 19 ایشیا کپ کا فائنل پاکستان اور بھارت کے درمیان کل کھیلا جائے گا۔ دبئی میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 8 وکٹوں سے ہرایا۔ بنگلہ دیش کی ٹیم 26.3 اوورز میں 121 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ پاکستان کی جانب سے عبدالسبحان نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان نے 122 رنز کا ہدف 16.3 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ اوپنر سمیر مہناز 69 رنز کے ساتھ ناقابل شکست بلے باز رہے۔ انڈر 19 ایشیا کپ پی ٹی وی سپورٹس اور پی ٹی وی نیشنل پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ ایشز سیریز کا تیسرا ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے انگلینڈ کو 228 رنز اور آسٹریلیا کو 4 وکٹیں درکار ہیں۔ ایڈیلیڈ میں کل کھیل کے چوتھے روز انگلش ٹیم نے کینگروز کے 435 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 6 وکٹوں پر 207 رن سکور کر لیے۔ بین ڈکٹ 4، اولی پوپ 17، جو روٹ 39، ہیری بروک 30، بین سٹوکس 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ زیک کرالی نے سب سے زیادہ 85 رن سکور کیے۔ جیمی سمتھ 2 اور ول جیکس 11 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ ہیں۔ آسٹریلیا کی جانب سے پیٹ کمنس اور نیتھن لیون نے 3 وکٹیں اپنے نام کیں۔
اس سے قبل آسٹریلیا نے اپنی دوسری اننگز کل کے سکور 271 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ سے دوبارہ شروع کی تو باقی کے 6 کھلاڑی سکور میں 79 رنز کے اضافے کے بعد پیویلین لوٹ گئے۔ آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں 371 اور دوسری اننگز میں 349 رنز بنائے تھے۔ انگلش ٹیم پہلی اننگز میں 286 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی۔ 5 میچز کی سیریز میں آسٹریلیا کو 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ ایشز سیریز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ بگ بیش کرکٹ لیگ کے 7ویں میچ میں سڈنی سکسرز نے سڈنی تھنڈر کو 47 رن سے ہرا دیا۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا۔ سڈنی میں کھیلے گئے میچ میں سکسرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 198 رنز بنائے۔ جوش فلپ نے 57 گیندوں پر 96 رنز کی اننگز کھیلی، جس میں 4 چھکے اور 6 چوکے شامل تھے۔ بابر اعظم نے 58 رن سکور کیے۔ ان کی اننگز 2 چھکوں اور 5 چوکوں پر مشتمل تھی۔ ڈینیل ہیوز 25 رنز بنانے میں کامیاب ہوئے۔ تھنڈر کی جانب سے ریس ٹاپلی نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ 199 رنز کے ہدف کے تعاقب میں سڈنی تھنڈر کی ٹیم آخری اوور میں 151 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ سیم بلنگز 51 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ شاداب خان نے 41 رن سکور کیے۔ سڈنی سکسرز کی جانب سے جیک ایڈورڈز نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ Takes on mid off. That's a good shot. Catch that, Cody. Should be out. It is. We'll catch that. Oh, hang on, and another one for the skipper. Might be down his throat, might be over his head, or it's in his hands. The man doesn't drop him. Silky smooth from Jordan. بیکن ہاؤس لاہور نے غنی اسکول ٹورنامنٹ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے فائنل میں بیکن ہاؤس اسکول نے ایچسن کالج کو ہرا دیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے فائنل میچ دیکھا۔ انہوں نے فاتح ٹیم کے کھلاڑیوں کو فائنل جیتنے پر مبارکباد دیتے ہوئے ٹرافی دی۔ چیئرمین PCB اور صوبائی وزیر کھیل فیصل کھوکر نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ محسن نقوی نے اس موقع پر کہا کہ اسکول لیول پر کرکٹ کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ غنی انسٹیٹیوٹ آف کرکٹ نے اسکول کرکٹ کے فروغ کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ سے بھرپور تعاون کیا ہے۔ چیئرمین PCB نے بیکن ہاؤس کے لیے کرکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے 50 لاکھ روپے کا اعلان کیا، جبکہ ایچسن کالج کو 25 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ امریکی کونسل جنرل اسٹیٹسن سینڈرز سے PSL چیف ایگزیکٹو سلمان نصیر نے ملاقات کی۔ لاہور میں ہونے والی ملاقات میں نیو یارک میں ہونے والے PSL روڈ شو اور امریکی سرمایہ کاروں کی پاکستان سپر لیگ میں دلچسپی پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ امریکہ میں کرکٹ کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کے حوالے سے مختلف منصوبوں پر غور کیا گیا۔ کونسل جنرل نے PSL کی ورکنگ اور اس کی بڑھتی مقبولیت کے بارے میں جاننے میں دلچسپی ظاہر کی۔ ملاقات میں امریکہ میں کرکٹ کی ترقی کے لیے نئے راستے تلاش کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اور اب بات کر لیتے ہیں فٹ بال کی، تو جرمن فٹ بال لیگ بنڈس لیگا میں بروسیا ڈورٹمنڈ نے بروسیا مونشن گلاڈباخ کو ہرا دیا۔ ڈورٹمنڈ میں کھیلے گئے میچ میں میزبان بروسیا ڈورٹمنڈ نے 2 گول سے کامیابی سمیٹی۔ کھیل کے 10ویں منٹ میں جولین برانٹ نے گول کر کے بروسیا ڈورٹمنڈ کو برتری دلائی۔ فاتح ٹیم کی جانب سے دوسرا گول میکسیمیلین بائر نے کھیل کے اختتامی لمحات میں کیا۔ پوائنٹس ٹیبل پر بروسیا ڈورٹمنڈ 32 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ بائرن میونخ 38 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ اور ہسپانوی فٹ بال لیگ لا لیگا میں ویلنسیا اور مالورکا کے درمیان مقابلہ برابری کی بنیاد پر ختم ہوا۔ ویلنسیا میں کھیلا گیا میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ 23ویں منٹ میں سامو کوسٹا نے گول کر کے مالورکا کو برتری دلائی۔ 52ویں منٹ میں ویلنسیا کے ہوگو ڈورو نے فٹ بال کو جال کی راہ دکھا کر یہ مقابلہ برابر کر دیا۔ پوائنٹس ٹیبل پر مالورکا 14ویں جبکہ ویلنسیا کی ٹیم 16ویں نمبر پر موجود ہے۔ بارسلونا کی ٹاپ پوزیشن ہے۔ سویڈش پول والٹر ارمان ڈوپلانٹس نے لگاتار دوسرے سال بھی ورلڈ سپورٹ سٹار آف دی ایئر ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ ارمان ڈوپلانٹس نے مقابلے پر موجود امریکی ایتھلیٹ سڈنی میکلالن لیورن، اسپینش فٹ بالر ماریانا کالدینی اور مصری فٹ بالر محمد صلاح کو مات دے کر یہ اعزاز اپنے نام کیا۔ موندو ڈوپلانٹس نے رواں سال ستمبر میں ٹوکیو میں مسلسل تیسرا عالمی ٹائٹل جیتا۔
उन्होंने 6.30 मीटर की छलांग लगाकर अपना 14वां आलमी रिकॉर्ड बनाया। 2025 में मोंडो डुप्लांटिस का ये चौथा आलमी रिकॉर्ड था जो एक साल में सबसे ज्यादा है। उन्होंने तारीख में सबसे ज्यादा 6 मीटर की क्लियरेंसेस हासिल की हैं। 2 मरतबा के ओलंपिक चैंपियन ने गुज़श्ता 8 आलमी मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीता। जापान में उनकी फतह से उनका नाकाबिल शिकस्त रिकॉर्ड 37 मुकाबलों तक बढ़ गया है। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।